All right. So, are you preparing for RBI Grade B 2025 on your own? Are you doing the self preparation for this examination? So, you must need a book list for the upcoming RBI Grade B examination, right? So, in this particular video, I'm going to discuss the book list for both the phases of the examination, phase 1 and phase 2. So, we will be discussing the subject wise book list for this examination for both phase 1 and phase 2. ठीक है जी. So I will be starting with phase 1, right? I will be also telling you how you have to cover, how you have to cover any particular book. किस तरीके से उस बुक को अप्रोच करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. Then I'll talk about the phase 2 books, and at the end of the session we will be discussing the sources of current affairs as well. Current affairs के sources मैं 25-50 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, बट ठीक है एक बार और सही. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फेज 1, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं, सो इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो आरबीआई का क्वांट का पेपर होता है दैट इज वे टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स. You need to focus on the concepts, right? बिना concepts के you won't be able to solve. See, if you will only focus on the speed, it is not possible for you to solve all the 30 questions as per the current pattern of the examination. अगर कल को एग्जाम इजी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते. सो अगर आप सिर्फ स्पीड पे रिलाय करके जाओगे, you won't be able to solve even 10 questions. So you need to focus on the concepts first, and then you have to focus on the speed. ठीक है, स्पीड आपको मदद करेगी, बट नॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. यू कांट जस्ट यूज द शॉर्ट ट्रिक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू अप्लाई स्पीड while solving, while calculating for any particular question by applying the concepts, right? So this is how you prepare for quant, for RBI grade B examination. And for concept building, you can use either of these books, either Dr. R.S. Agarwal की quant aptitude full फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, फुल्ली सॉल्व, इसमें पास्ट ईयर पेपर्स है, या फिर ये एक किरण प्रकाशन की आती है जो कि बैंक पीओ के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है. नाउ इन दिस बैंक पीओ बुक you have to follow the mains level question, right? You have to cover, you have to solve the mains level question and not the pre level question, because in RBI you are not going to get the pre level questions. ठीक है, after going through this, for example, you are doing a chapter profit and loss. So first you have to understand the concepts through either of these books, right? पहले आपने क्या करा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है. उसके बाद इसमें आपने मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पिक अप दिस बुक एज वेल, व्हिच इज क्वांटम कैट बाय अरुण शर्मा. यू कैन आल्सो टेक सर्वेश वर्मा's बुक ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट. ठीक है, तो कैट की या तो अरुण शर्मा की बुक उठा लो या फिर सर्वेश वर्मा की उठा लो, दोनों में से कोई भी चलेगी. इसके लेवल 2 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज आइदर ऑफ दीज बुक, सर्वेश वर्मा और अरुण शर्मा, अप टू लेवल 2. ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका क्वांट कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपको क्वांट की चिंता करने की जरूरत नहीं. दिस वाज फॉर क्वांट. Similar strategy you have to follow in the reasoning, right? In the reasoning also you have to follow the similar strategy. In the reasoning also, the questions are very, very tough. The questions are very, very tough. You get 45 minutes. You get 45 minutes to solve 60 questions, and it is not possible to solve all 60 questions in the given 45 minutes at all. So you need to target the questions. Okay, these are the areas where I will in the examination, in the actual examination, in areas में मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा. ठीक है, एंड दैट यू कैन ओनली डिटरमाइन थ्रू द प्रैक्टिस, एंड दिस बुक इज मोर देन इनफ फॉर दैट. बैंक पीओ रीजनिंग बाय किरण प्रकाशन, या फिर एक आर.एस. अग्रवाल की आती है बैंक रीजनिंग की, आप वो भी ले सकते हैं. ठीक है, आई वुड प्रेफर इनमें से कोई भी ले सकते हो. या तो किरण की ले लो बैंक पीओ रीजनिंग, या फिर आप आर.एस. अग्रवाल की भी ले सकते हैं. बोथ द बुक्स आर गुड टू गो, एंड यस, यू हैव टू प्रैक्टिस. The reasoning is all about, reasoning and quant are all about practice. The more you practice, the more strengthened you will be for the examination. ठीक है, that's it for the reasoning. And reasoning में again you can't only rely on the speed. You have to understand the concepts, and then you can use your speed calculation to solve the questions. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे. Now a lot of people are weak in grammar, are weak in sentence formation. They do not understand the basic idioms and phrases. So for them this book is good to go. SP Bakshi Objective General English. SP Bakshi की Objective General English है. इस बुक से आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक सेंटेंस करेक्शन, बेसिक एरर डिटेक्शन रूल्स,
बेसिक पैराजम्बल्स, इन सब का आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड ace yourself in the objective English part, ठीक है। And of course for the descriptive part of the English descriptive part of RBI grade B, there cannot be any book, there is only one way and that is to practice, and from where you can practice के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फेज 1। नाउ फेज 1 में एक पोर्शन और होता है, एक पार्ट और होता है जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, फेज 2 में मैनेजमेंट की। सो इन द मैनेजमेंट you have to go with both these books, organization theory and behavior, principles on and practice of management. Now please remember you don't have to cover the entire books, ये दोनों किताबें पूरी करने की आपको जरूरत नहीं है। You have to put the syllabus in front of you, you have to pick up the chapters, you have to decide the chapters from these books which are directly aligned with the syllabus of RBI, and then you have to cover only those chapters. गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, you have to do the smart study, and for smart study you need to consider your syllabus as a bible and follow it religiously, ठीक है। So like this book, Principles and Practice of Management, it is for the topics like Introduction to Management, Management Theories, Management Principles, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका इस बुक से कवर होता है, ठीक है। दिस इज बाय TN छाबड़ा एंड BP सिंह, दिस इज ऑल्सो बाय TN छाबड़ा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन में चलती है, तो आप में से जो भी लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इस बुक के बारे में, ठीक है। जो एथिक्स वाला पार्ट है उसके लिए ICSI की फाउंडेशन आती है, फाउंडेशन बुक आती है P2 बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें इस बुक में से भी, इस मॉड्यूल में से भी केवल जो एथिक्स वाला पार्ट है आपको वो करके जाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू PhD इन मैनेजमेंट, डू रिमेंबर यू हैव टू जस्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है। यू नीड टू stick to the basic understanding of the syllabus and the concepts which are given in these books, okay। Talking about finance पे अगर हम आते हैं तो फाइनेंस में अगेन दिस बुक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, भारती पाठक, बट बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ी बल्कि सी किताब है ये। एंड अगेन विद दिस बुक ऑल्सो यू डोंट हैव टू cover the entire book, that is not at all required, and you can also go for the UPSC finance notes which are available in the market। UPSC के फाइनेंस नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अभी हम, क्योंकि आज हम बुक की बात कर रहे हैं, तो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक्स ओनली। तो भारतीय पाठक की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये आप फॉलो कर सकते हो। अगेन द एंटायर बुक इज नॉट रिक्वायर्ड, you need to put the syllabus in front of you and then you have to cover only those chapters which are mentioned in the syllabus, right। जो सिलेबस का पार्ट है टॉपिक्स, केवल आपको वही करके जाना है, उसके अलावा नहीं करके जाना। ये वाला पार्ट करना है, ये इस बुक का इस्तेमाल करना है फॉर द फाइनेंस पार्ट। while this book TS Grewal basic analysis of financial statement, this book is for the accounting part। I hope you know that there is a basic accounting part in the RBI syllabus, right। so for that you can go with this book। basic book है, क्लास 11-12 में इस्तेमाल की जाती है TS Grewal की, ठीक है। easy to understand है, कोई भी चाहे साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड है या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, यू गाइस कैन इजीली कवर दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है। नाउ फाइनेंस यहीं पे खत्म नहीं होता है, फाइनेंस के लिए देयर इज अ PDF ऑन RBI's वेबसाइट, यू कैन गो एंड सर्च ऑन RBI's वेबसाइट, RBI's फंक्शंस एंड वर्किंग, RBI's फंक्शंस एंड वर्किंग। इस PDF को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दिस PDF विल बी वेरी हेल्पफुल इन बोथ द फेज 2 एंड इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू और फेज 2 दोनों में ही ये बुक जो है आपको काफी ज्यादा मदद करने वाली है, ये जो PDF है, ठीक है। इसके बाद में आता हूँ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, जिसमें से देयर आर नॉट मच स्टैटिक क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट अगेन if you want to write the good descriptive answers, you must have an idea about the Indian economy and obviously, ठीक है। चलो एग्जामिनेशन को छोड़ो, you are going to work for RBI, so don't you think that you should have a basic understanding about the Indian economy, and for that you can follow either of these book। इनमें से कोई एक, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह, वैसे आजकल नितिन सिंघानिया जी ज्यादा चल रहे हैं, सो इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया इज अ गुड बुक टू गो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट। अब हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है
that for current affairs for both phases, phase 1 and phase 2, first of all there is no differentiation between phase 1 and phase 2 करंट अफेयर्स, ठीक है। अब कंबाइन पढ़ना होता है फेज 1 और फेज 2 करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, पीआईबी करंट अफेयर्स जो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में यूट्यूब पे कराता हूँ, फाइनेंस करंट अफेयर्स जो कि माधव सर कराते हैं एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और उसके बाद कोई भी करंट अफेयर्स जनरल करंट अफेयर्स की मैगजीन, या तो आप हमारी ले सकते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं और एनुअल सर्वेज आते हैं, इसके लिए भी यू हैव टू फॉलो दीज पीआईबी सेशंस, एंड after notification I will be taking a revision session, from there you can cover all the annual surveys and the government schemes as well, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट 6 महीने का करके जाना है फॉर बोथ द फेजेस, और वैसे भी फेज 1 और फेज 2 में ज्यादा टाइम तो होता नहीं है, 20 दिन का टाइम होता है, तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। एंड दीज 3 सोर्सेज गाइस आर मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इफ यू आर कवरिंग दीज 3, ठीक है जी। और जो कोर्स है एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वीकली और मंथली मैगजीन्स जो है इन सारी की मिल रही हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। Alright guys, that's it which I wanted to discuss in this particular video. I hope the book list is clear. Still, if you have any doubt, if you have any question, if you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.